Good morning, dear students. Earlier we have finished the phylum Mollusca, and today we are going to discuss the characteristic features of the animals which are present into the phylum Echinodermata. And one most important animal in this phylum is starfish. So if you just keep this animal in your mind, it will be easy for you to remember the characteristic features of this animal. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं phylum Echinodermata. So there are certain characteristic features, and most important is, as you can see in this diagram, this animal is in our labs also ना. हमारी लैब में बायो की ये एनिमल है प्रिजर्व फॉर्म में. तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा एंड आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी. तो आप देखोगे इट्स अ वाइट कलर एनिमल, एंड इसकी बॉडी पर बहुत सारे कांटे जैसे लगे होते हैं. दैट इज कॉल्ड स्पिक्यूल इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, और यू कैन से द स्पाइंस. तो ये स्पाइन है ना, क्योंकि इसकी सारी बॉडी पर यू कॉल देम स्पाइनी बॉडीड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल मोलस्का की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है ना. अगर आप ऑक्टोपस को देखो या मोलस्क को देखो तो यू कैन कॉल देम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. इन द सेम वे echinoderms mostly known as the spiny bodied animal because their body is covered with the lots of spines, and usually they are found in the sea water. Marine means आपने पढ़ा हुआ है, marine means the animals which are found in the sea. तो ये sea water में पाए जाते हैं सारे के सारे, कोई भी आपको fresh water में नहीं मिलेगा. organ system और you can say organ level of organization है, क्योंकि मैंने आपको बताया था once you have started that advancement of the organisms and their body parts, तो आपको हमेशा एक सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम आ गया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेलुलर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन. तो इट्स कीप ऑन मूविंग अहेड, तो ये आगे ही आगे चलना है. तो ऑलवेज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट देर इज़ अ वेरी यूनिक थिंग इन दिस फाइलम, दैट एडल्ट एनिमल्स have that radial symmetry, whereas the larva has the bilateral symmetry. Recall it when I just explained you the flow chart of the various phylum. At that place I have told you कि ये एक स्पेशल बात है इसके अंदर कि एक ही एनिमल के अंदर two types of symmetry is found. These are triploblastic and coelomate animals. The same way एक बार आपने triploblastic बोल दिया, एनिमल से स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही आपने बोलने हैं. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है. यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. यू ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. एंड दे हैव द ओपनिंग ऑफ माउथ एंड इन द फॉर्म ऑफ एनएस ऑल्सो. बट द थिंग विच इज वेरी यूनिक इज दैट at the lower surface mostly, or you can say basically, you have heard about that mouth is present on the upper surface, but in this case mouth is present onto the lower surface or ventral surface, and anus is present onto the upper surface, or you can say dorsal surface. Most important thing is that water vascular system is found in them, so you do not have to confuse with the porifera में canal system है, whereas in the Echinodermata वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन पोरीफेरा इट इज कैनाल सिस्टम, एंड इन द एकाइनोडर्मेटा इट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. एंड दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट for the various function of this animal. Like for example, with the help of this water vascular system, they can transport the food, they can respire, they can capture their prey, they can move one place from another place. So these are the functions here they have given. So many functions, 4-5 functions as you have seen listed here, they can perform with the help of water vascular system. And a unique thing, once again you have to see it here, that excretory system is absent in them, है ना. सेपरेट excretory system like kidney, nephron जैसे हम लोगों में होता है ना, वो सब उनमें नहीं होता है. Males and females are found in separately, that means sexes are separate. Reproduction sexual होता है, and development is indirect, that means larva is formed, and this larva is free swimming larva. There are so many examples which are in the Echinodermata, but you can remember it with the help of one or two animals like starfish. Its zoological name is Asterius. और anyone जो आपको अच्छा लगे, सपोज सी ककम्बर आपको इजीली याद हो जाता है, क्यूकुमेरिया इज द zoological name, तो you can learn it. At least 2 names you have to remember
बाकी तो और अगर आपको याद हो जाए दैट इज़ गुड, अगर नहीं होते हैं तो जो आपको ईजी लगते हैं वो आप याद कर लें। जो एक फेमस एनिमल है लाइक स्टार फिश, वो तो करनी करनी है आपने। नाउ लाइक Echinodermata is the last you can say phylum in case of invertebrates. तो invertebrates में तो Echinodermata तक हैं. Now again there is one more phylum that is called Hemichordata. तो it is a connecting link between invertebrates and vertebrates, क्योंकि from starting from the phylum Porifera to Echinodermata, all these animals are invertebrate animal. तो ये अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा. नाउ कम टू द हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज यहाँ पर किसी में भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं थी, किसी में भी वर्टिबल कॉलम नहीं थी. नाउ दिस इज द समथिंग विच आर इवॉल्व फ्रॉम द इकाइनोडर्मेट्स. तो अब उसमें कुछ अलग सी चीज़ें आएंगी. तो अर्लियर लोग इसको समझते थे कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये एक कॉर्डेटा का ही फाइलम है ना, सब फाइलम इसको मानते थे. बट नाउ डेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फाइलम. तो इसको नॉन कॉर्डेटा में और यहाँ वहाँ डालने के बजाय तो इसको सेपरेट फाइलम जो है करके डाल दिया गया है. किनके बीच में? नॉन कॉर्डेट्स के साथ में इनको डाला हुआ है. तो इस फाइलम का एक बहुत यूनिक सा एनिमल है दैट इज़ कॉल्ड बैलेनोग्लॉसिस. और इसकी शक्ल देख के ही आपको इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी याद हो जाएंगे. दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, 1 or 2 एनिमल्स है, नॉट मोर देन दिस. ज़्यादा है ही नहीं इस फाइलम के अंदर, क्योंकि ये बीच के थे ना, कनेक्टिंग लिंक थे. दे आर जस्ट इवॉल्विंग. कुछ कैरेक्टर्स इन वर्टिब्रेट्स जैसे हैं और कुछ कॉर्डेटा जैसे इसके अंदर हैं. तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड सा फाइलम है ये. तो मोस्टली दे आर ऑल्सो मरीन. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर. बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोमेट एनिमल्स हैं. सब जानते हैं आप मीनिंग. बॉडी इज सिलिंड्रिकल एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सिलिंड्रिकल बॉडी है एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 parts. वन इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, and this last portion is called trunk. तो it is considered is like mouth है ना. this is collar kind of thing, neck जैसी हो गई. और ये इसका ट्रंक हो गया, धड़ वाला हिस्सा जिसको आप बोलते हो. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, दीज आर द गिल्स. ये जो बीच में है इनको गिल्स बोलते हैं. तो दीज आर द गिल्स, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसका वो क्या है? प्रोबोसिस है. तो जैसे आपको लग तो रहा है माउथ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे, बट दिस इज नॉट द माउथ, दिस इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यू कैन से. तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गया. सेक्सेस आर सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. तो these are the 2 animals, Balanoglossus and Sacloglossus. तो Sacloglossus and Balanoglossus are the 2 animals. तो these are the 2 phylums which I have covered in this video, and I am going to make another video in which I will cover the phylum Chordata.